हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंध का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो कल का श्लोक में हमने देखा, जस्ट व्यासदेव बता रहे थे कि व्यास उवाच, तो व्यासदेव ये बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? हम सबको बता रहे हैं। व्यासदेव किसी एक व्यक्ति को नहीं बता रहे हैं। वो व्यासदेव बता रहे हैं कि जब नैमिषारण्य के ऋषियों ने इस तरह से प्रश्न किया, पहले अध्याय पूरा उन प्रश्नों के प्रश्न ही थे उसमें, तो ये प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी, रोमहर्षण के पुत्र हैं, बहुत खुश हुए, संहृष्ट हो। सूत गोस्वामी बहुत खुश होकर बोलने के लिए उनको धन्यवाद देते हुए बोलना शुरू किए, और बोलना शुरू किए ही तो आज पहला श्लोक है जो सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो जब भी कुछ बोलते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? प्रवचन जब भी हम देते हैं इस्कॉन में, वैष्णव संप्रदाय में, कभी भी हम प्रवचन देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब होता है प्रार्थना। मंगलाचरण में 3 चीज होते हैं, वस्तु निर्देश और प्रार्थना और आशीर्वाद। वस्तु निर्देश का मतलब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो बताएंगे। प्रार्थना मतलब प्रार्थना, और आशीर्वाद ये जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उनको क्या मिलेगा, ये सब होते हैं मंगलाचरण। ठीक है, तो ये प्रार्थना है। सूत गोस्वामी आज के श्लोक में बोल रहे हैं, आप रिपीट करिए। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। तं सर्वभूत हृदयं मुनिम् आनतोस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। देखो ना, स्मार्टफोन रखा है। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्।
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए। सूतः सूत गोस्वामी उवाच said yam whom pravrajantam while going away for the renounced order of life, anupetam without being reformed by the sacred thread, apeta not undergoing ceremonies, कृत्यम prescribed duties, द्वैपायनः व्यासदेव viraha separation, कातरः being afraid of, ajuhava exclaimed, putra iti, O my son, tat mayataya, being absorbed in that way, taravaha, all the trees, abhineduhu, responded, tam, unto him, sarva, all, bhuta, living entities, hridayam, heart, munim, sage, anatah asmi, offer obeisances. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Suta Goswami said, let me offer my respectful obeisance unto that great sage Sukadeva Goswami, who can enter the hearts of all. When he went away to take up the renounced order of life sannyasa, leaving home without undergoing reformation by the sacred thread or the ceremonies observed by the higher castes, his father Vyasadeva, fearing separation from him, cried out, O my son! Indeed, only the trees which were absorbed in the same feeling of separation echoed in response to the bereaved father. Purport भी पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद सब explain करूँगा. Purport. The institution of Varna and Ashrama prescribes many regulative duties to be observed by its followers. Such duties enjoin that a candidate willing to study the Vedas must approach a bona fide spiritual master and request acceptance as his disciple. The sacred thread is a sign of those who are competent to study the Vedas from the Acharya or the bona fide spiritual master. Sri Sukadeva Goswami did not undergo such purificatory ceremonies because he was a liberated soul from his very birth. Generally, a man is born as an ordinary being, and by the purificatory processes, he is born for the second time. When he sees a new light and seeks direction for spiritual progress, he approaches the spiritual master for instruction in the Vedas. The spiritual master accepts only the sincere inquirer as his disciple and gives him the sacred thread. In this way, a man becomes twice born or a Dvija. After qualifying as a Dvija, one may study the Vedas, and after becoming well versed in the Vedas, one becomes a Vipra. A Vipra or a qualified Brahmana thus realizes the absolute and makes further progress in spiritual life until he reaches the Vaishnava stage. The Vaishnava stage is the postgraduate status of a Brahmana. A progressive Brahmana must necessarily become a Vaishnava, for a Vaishnava is a self-realized learned Brahmana. Srila Sukadeva Goswami was a Vaishnava from the beginning. Therefore, there was no need for him to undergo all the processes of the Varnashrama institution. Ultimately, the aim of Varnashrama Dharma is to turn a crude man into a pure devotee of the Lord, or a Vaishnava. Anyone, therefore, who becomes a Vaishnava, accepted by the first class Vaishnava or Uttam Adhikari Vaishnava, is already considered a Brahmana, regardless of his birth or past deeds. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted this principle and recognized Srila Haridas Thakur as the Acharya of the holy name, although Thakur Haridas appeared in a Mohammedan family. In conclusion, Sri Sukadeva Goswami was born a Vaishnava and therefore
Brahmanism was included in him. He did not have to undergo any ceremonies. Any low-born person, be he a Kirata, Hona, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Shumbha, Yavana, Kasha, or even lower, can be delivered to the highest transcendental position by the mercy of Vaishnavas. Sri Sukadeva Goswami was the spiritual master of Sri Suta Goswami, who therefore offers a respectful obeisance to Sri Sukadeva Goswami before he begins his answers to the questions of the sages at Naimisharanya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Supadantikam Namaham Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitanamani. Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Sunyamadi Paschatya Deshtarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो यहाँ बोल रहे हैं यम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आनतः अस्मि, मैं हाँ, नत होना मतलब क्या? मस्तक मतलब सर, नत मतलब झुकाना, नत मतलब झुकना। आनतो अस्मि, मैं झुकता हूँ किनके सामने? यम प्रव्रजंतम द्वैपायन विरह कातर आज है मुनिम, उस मुनि को प्रणाम करता हूँ। कौन सा मुनि? जिन्होंने प्रव्रजंतम, जो चले गए थे। कब चले गए थे, कहाँ चले गए थे? जन्म लेते से ही चले गए। 16 साल के बालक के रूप में जन्म लिए थे और जन्म लेते से वो चले गए थे। कहाँ? हाँ, वो चले गए थे, बताता हूँ किसके लिए। अनुपेतम, अपेत कृत्यम। अनुपेतम मतलब जो जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। अपेत कृत्यम मतलब कोई भी संस्कार नहीं हुआ। मतलब कोई बच्चा पैदा होता है, पहले तो उसको जात कर्म करते हैं, उसके बाद मुंडन संस्कार करते हैं, उसके बाद अन्नप्राशन करते हैं, पहले जो ग्रेन्स खिलाते हैं पहली बार। उसके बाद वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अक्षराभ्यास, जो पहली बार जब पढ़ाई स्टार्ट होती है लिखवाते हैं। उसके बाद जनेऊ संस्कार होता है। उसके बाद और भी कई प्रकार के संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कारों से क्या होता है? प्यूरिफाई होता है व्यक्ति। तो कोई भी प्रकार का संस्कार नहीं किया गया, पैदा हुआ बस निकल गया। और उनके पीछे पीछे कौन दौड़ने लगे? व्यासदेव। कैसे, क्या बोलते? पुत्रा, ओ मेरे बेटा, ओ माय सन, ऐसा पुकारते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। कौन? व्यासदेव। हाँ, और उसका जवाब कौन दिए? सिर्फ वृक्ष। तरवो अभिनय दुह, मतलब उनका इको खुद सुनाई दे रहा है, वृक्षों से इको आ रहा था। हाँ, पुत्रा पुत्रा ऐसा बोल रहे थे। पुत्र तो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन उनका ही आवाज वापस उनको सुनाई दे रहा है, पेड़ों से रिफ्लेक्ट होकर। हाँ, सो तो इस प्रकार से उनके खुद का आवाज उनको सुनाई दे रहा था, रिफ्लेक्ट होकर, है ना। तरवो अभिनय दुह। तो ये सुन के कैसा लगेगा आपको? हाँ, उनको कोई दिल नहीं है क्या? उनका कोई हार्ट नहीं है? पिताजी इतना पुकार रहे हैं,
पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे दौड़ दौड़ के पुकार रहे हैं, हाँ बेटा इधर आओ, बेटा वापस आओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। हाँ, जाहिर है जवाब भी नहीं दे रहा, कम से कम जवाब तो देना चाहिए ना, जवाब भी नहीं दे रहा है। मतलब कितना वो हार्टलेस, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ निर्दय, कितना निर्दय है, बिल्कुल उनको हृदय हार्ट ही नहीं है। हाँ, कम से कम मुड़ के तो देखो, हाँ जी पिताजी बताइए क्या बात है, इतना तो बोलना चाहिए ना। हाँ, ये भी नहीं बोल, फिर वो चले जा रहा है और पीछे व्यासदेव, बेटा बेटा वापस आओ, ऐसा पुकार रहे हैं। बिल्कुल उनका कोई दिल ही नहीं, हार्ट ही नहीं, ऐसा लगता है ना। इसलिए वो क्लैरिफाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं, सर्वभूत हृदयम, उनके दिल में सभी जीव हैं। ऐसा नहीं कि उनके हार्ट में कोई प्रेम नहीं है, पर उनका प्रेम सिर्फ शरीर के आधार पर नहीं है। कई बार हमको लगता है कि जो ब्रह्मचारी या सन्यासी बन जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, है ना, ऐसा लगता है कि ये हार्टलेस है। हाँ, कोई फीलिंग्स नहीं है उनके अंदर। देखो माता पिता इतने दुखी हैं, हाँ माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा, उन्हें कितना पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, हाँ 20-22 साल तक, और उसके बाद जो है बिल्कुल केयर ना करके, उनको ये नहीं करके चले गया, है ना। दैट इट अपीयर्स टू बी अ वेरी हार्टलेस, मतलब बिल्कुल उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, ऐसा लगता है। बट लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ वो एक्चुअली फीलिंग्स सिर्फ शरीर के आधार पर नहीं। क्यों क्यों फीलिंग्स हमको होते हैं, हमारे फीलिंग्स कैसे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हमको ये समझते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, और इस शरीर को, क्योंकि ये शरीर इनसे मिला है, और ये शरीर को जो खाना पीना वगैरह वगैरह ये सब इनसे मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उनके प्रति आसक्त हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्वभूत हृदयम, वो तो शरीर के चेतना ही नहीं, वो तो समझ गया कि मैं शरीर हूं ही। हाँ, तो उनको प्रेम जरूर था, सर्वभूत हृदयम, सभी जीवों के ऊपर उनको प्रेम था। वो ये नहीं देख रहे कि ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, हाँ ये ब्राह्मण है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये चंडाल है, ये शूद्र है। वो तो सभी जीवों को एक जैसा देख रहे हैं, सर्वभूत हृदयम, और सभी जीवों के प्रति उनको दया थी, और इंक्लूडिंग हिज फादर। वो अपने पिताजी को अगर हाँ हाँ पिताजी आइए बताइए क्या करना, ऐसा बोलते तो उनके पिताजी खुश हो जाते, है ना। लेकिन वो जो खुशी है, वो खुशी असली खुशी नहीं है। जब तक वो भौतिक आसक्ति रहेगी, वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनको भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी आसक्ति को छोड़ो, और असली खुशी भगवान के पास है। हाँ, कई बार किसी को भला करने के लिए उनको दर्द भी देना पड़ता है। जैसे डॉक्टर वही करता है ना, जब ऑपरेशन करता है या कुछ इंजेक्शन लगाता है, कुछ करता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कितना दर्द दे रहा है, हाँ? है ना। लेकिन वो दर्द दे रहा है ताकि एक्चुअली अल्टीमेटली असली खुशी मिले। उसी प्रकार से साधु, साधु का मतलब यह है जो काटता है, वन हु कट्स। प्रभुपाद एक परिभाषा ये भी देते हैं साधु का, साधु वो होते हैं जो काटता है। क्या काटता है, आपकी आसक्ति को काटता है। कभी कभी कड़वे वचन बोलता है, कभी कड़वा सत्य बोलता है। ऐसा नहीं कि साधु मतलब हमेशा बहुत अच्छे, हाँ हाँ कैसे, हाँ सब बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा, यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छे भक्त हैं आप बहुत अच्छा हो, हमको बहुत अच्छा लगा, हाँ? ऐसा स्माइल करते रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं। हाँ, बल्कि साधु काटता है, भौतिक आसक्ति को काटता है, हाँ? और वो काटते हैं तो थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन वो इतना दर्द नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से भाग जाए। हाँ, ऐसा काटना चाहिए कि व्यक्ति भी जिंदा रहे, हाँ ऑपरेशन सक्सेस भी हो और व्यक्ति भाग भी ना जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि
हम प्रचार में ऐसा नहीं कि सिर्फ उन लोगों को खुश करना हमारा उद्देश्य। ऐसा बहुत सारे तथाकथित गुरु हैं जिनके हजारों लाखों फॉलोअर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली चीज तो देते ही नहीं, और सबको खुश करने के लिए घूमते हैं। आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छा है, बस आप आते रहो, प्रणाम करते रहो, दक्षिणा देते रहो, सब बढ़िया है। उनको कुछ आसक्ति छोड़ने के लिए, कुछ पाप कार्यों को छोड़ने के लिए कुछ ऐसा नहीं कहते। सबको खुश रखते हैं, मन को खुश रखते हैं, सबके मन। और जब व्यक्ति का मन खुश रहता है तो कुछ भी कर सकता है। तो मन को खुश करना, खुश रखना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है उसको क्योर करना, उसके लिए उसका भलाई करना, है ना, जिससे असली खुशी, शाश्वत जो खुशी है वो मिले। हाँ, तो परमानेंट हैप्पीनेस देना है तो कभी कभी टेम्पररी हैप्पीनेस से जो हमारी आसक्ति है उसको काटना है। हाँ, तो पिताजी का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ये पिताजी का जवाब पता है, जवाब देंगे तो क्या होगा, कोई सिर्फ भौतिक आसक्ति उनकी बढ़ेगी। हाँ, उससे असली खुशी थोड़ी ना मिलेगी। और मेरे प्रति जो उनकी आसक्ति है वो खत्म हो जाए तो वो खुश रहेंगे, ये सोच के वो जवाब भी नहीं दे रहे थे। हाँ, पर ऐसा नहीं कि उनको हार्ट में कोई फीलिंग्स नहीं है या दया नहीं है। इनफैक्ट उनको दया सभी जीवों के ऊपर है। इसीलिए वो घर घर जाते थे। हाँ, गोदोहन मात्रम ही, सिर्फ इतनी देर रहते थे ताकि गाय का दूध निकालने में जितनी देर देर लगती, 15 मिनट, 10-15 मिनट, ताकि उनको ऐसा नहीं कि दूध पीने के लिए खड़े होते थे, बल्कि उनको एक्चुअली ज्ञान देने के लिए, उनको कुछ एसोसिएशन देने के लिए। उसके बाद चले जाते थे वहां से। सो हमारी जो दया है वो, उसका आधार ज्ञान होना चाहिए। हमको अगर पता नहीं है कि कैसे दया दिखाना, तो हम दया दिखाते दिखाते उनके शत्रु बन जाते, उनको फायदा से ज्यादा नुकसान पहुंचता। कई बार अपने परिवार वालों को या किसी को भी खुश करने के चक्कर में, उनको खुश तो अभी थोड़ी देर के लिए खुश तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके बेनिफिट हम नहीं दे रहे, अल्टीमेटली उनको नुकसान। हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी देर के लिए अब दर्द लगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको फायदा जिससे होगा वो हमें करना चाहिए, जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। सो देयरफॉर भक्त दया दिखाने से पहले मेन हम उनका आधार क्या है? ज्ञान। भौतिक संसार में भी सब दया दिखाना चाहते हैं और हम भी दया दिखाना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? हमें पता है कि किससे उनका भला होगा, उनको नहीं पता है कि किससे भला होगा। उनको लगता है कि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद है। बोला हमें पता है एक्चुअली उसमें आनंद नहीं है, असली आनंद है भगवान के साथ कनेक्शन में। हाँ, तो सिर्फ ज्ञान का फर्क। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको असली सच पता नहीं है कि हम कौन है, भगवान कौन है, फिर भी आप लोगों को दया दिखाना चाहते हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, हाँ, भंडारा करते हैं, गरीबों को कपड़ा बांटते हैं, है ना, तरह तरह के कार्य करते हैं, बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं भौतिक लाभ के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं। वो अच्छा भी है, हाँ, अगर सही दृष्टि से किया जाए, लेकिन उनको सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे। बेनिफिट सिर्फ शरीर तो को पहुंचा रहा है। अस्पताल खोल के किसी को फ्री में इलाज कराया, ठीक है, शरीर को हेल्प किया, लेकिन आत्मा को क्या बेनिफिट है उसमें? फिर वो शरीर तो कभी खत्म होगा ही होगा, फिर वो बीमार पड़ेगा, खाना खिलाओगे फिर भूख लगेगा, तो समस्या का परमानेंट समाधान नहीं है उसमें, है ना। तो इसलिए जो रियल बेनिफिट है तभी होता है जब उनके समस्या को जड़ से समाधान किया जाए, शाश्वत परमानेंट सॉल्यूशन जो दिया जाए। आप कितना ही बेनिफिट दो, जब शरीर खत्म हो जाएगा तो सब खत्म होगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट देंगे तो नेक्स्ट लाइफ में भी हमेशा के लिए उनका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बार मैंने जैसे कहा, फायदा करने के चक्कर में हम नुकसान कर बैठते हैं।
जो कल बताया था, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, गरीबों को खाना खिलाने के चक्कर में उनको नॉनवेज खिलाते हैं। गरीबों को खाना खिलाना है, हाँ, खाना बांटते हैं, लेकिन नॉनवेज का खाना बांटते हैं। नॉनवेज खाना बांट के क्या होगा? हाँ, उसको और जल्दी नरक भेज रहे। हाँ, करेक्ट। एक बार एक आदमी ने एक बंदर पाला था, और बंदर को जो चाहिए वो खिलाता था, सब करता था, और बंदर बहुत वफादार बंदर था और अपने मालिक को बहुत प्रेम करता था। और मालिक हमेशा ध्यान रखता था कि मेरे मालिक को कोई दिक्कत नहीं आनी। तो एक बार क्या हुआ, वो मालिक सो रहा था और एक मच्छर जो है आके उनके सर के ऊपर बैठ गया। हाँ, तो बंदर ने क्या किया? हाँ, उनका रिवॉल्वर निकाला, उनका बंदूक निकाल के, मेरे मालिक के ऊपर बैठते हो तुम, बोल के उस मच्छर के ऊपर गोली चलाया। क्या हुआ होगा? मच्छर तो उड़ गया, लेकिन तो उनके इंटेंशन यही था कि मालिक को हेल्प करने के लिए, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। तो इसी प्रकार से हम कई बार परिवार वाले भी ये सोचते हैं, अरे इस्कॉन में ज्यादा जाएगा तो वो ज्यादा उसमें जाएगा तो वहीं चला जाएगा, तो इसलिए ज्यादा मत जाओ, इस्कॉन मान मत करो, भक्ति मत करो। हाँ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिम्हा, प्रहलाद महाराज कहते हैं, माता पिता भी आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते। मृत्यु से कौन बचा सकता है? सिर्फ भगवान ही बचा सकते। अंते नारायण स्मृति। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिम्हा, नार्तस्य चाकद उदन्वति मज्जतो नौहु। यानी बीमार को दवाई बचा नहीं सकती, डूबने वाले को कितना भी अच्छा नाव दो, वो भी बचा नहीं सकता। हाँ, जब तक भगवान, तावद विभूत अनुभृताम तदुपेक्षिता नाम, जब तक भगवान की कृपा नहीं, माता पिता भी बच्चे को बचा नहीं सकते। इसलिए कहने का मतलब है कि तो ये भूल जाते हैं माता पिता, ये भूलकर उनको और भक्ति से दूर लेने की कोशिश कर, अपने अपने साथ रखने, लेकिन ऐसा करके उनको क्या कर रहे हैं? भला कर रहे हैं कि नुकसान? नुकसान कर रहे हैं। इनफैक्ट भागवतम कहता है कि हाँ, पिता क्या कहते, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, माता या पिता बनने का अधिकार नहीं है जब तक आप अपने डिपेंडेंट को मृत्यु के संसार से बाहर नहीं। इसलिए वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलकर वो अपने आप को दोस्त समझते हुए एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं? दुश्मन बन रहे हैं। उनका भला करने की जगह उनका नुकसान। हाँ, और उसको वो क्या समझते हैं? हमारा प्रेम। लेकिन वो प्रेम बिना ज्ञान का है तो वो मच्छर वाला कहानी, वो बंदर वाला कहानी। तो दैट इज वाई नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रियली हम भला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज का सिम्टम क्या है? नॉलेज का सिम्टम है कि हमारे प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व करें। नॉलेज का मतलब ये नहीं कि हमने शास्त्र पढ़ लिया, कुछ सीख लिया। नॉलेज का मतलब ये है कि अपने लाइफ में जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन आप कर पाए। जब हम अपने खुद का उद्धार करेंगे, हम तब दूसरों को उद्धार कर सकते। यानी इस नॉलेज को ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने श्लोक पढ़ लिया, बट लेकिन इसके माध्यम से मैं अपनी लाइफ में बदलाव ला पा रहा हूं, अपनी लाइफ को मैं सही कर पा रहा हूं, तो तब मैं दूसरों को बोलने का अधिकार रखता हूं। राइट? तो जब वो नॉलेज हमारे अंदर रहेगा, नॉलेज मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, रियलाइजेशन।
प्रैक्टिकल नॉलेज, जब इसको हमने अपने लाइफ में अप्लाई करके रियलाइज करते हैं, हाँ, तो तब हमें पता है कि हमारे लाइफ की समस्या इससे सॉल्व हुई है विथ प्रूफ। उसका प्रूफ मैं ही हूं कि ये काम करता है। अब मैं जाकर उस नॉलेज के आधार पर दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ। जो व्यक्ति खुद को ही हेल्प नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या हेल्प करेगा? तो इसलिए हाँ, ये है सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी हाईएस्ट बेनिफिट देना चाहते हैं, इंक्लूडिंग उनके पिताजी को भी। उनके पिताजी से भी ज्यादा एडवांस थे वो। व्यासदेव जब भी भगवान के अवतार है, हाँ, पर उनसे भी ज्यादा एडवांस थे सुखदेव गोस्वामी। शिव जी कहते हैं कि अहम वेद्मि सुको वेत्ति, यशो वेत्ति न वेत्ति वा। बोलते हैं भागवत का तत्व जो है मैं जानता हूं, शिव जी कह रहे हैं। और कौन जानते हैं? सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। पर व्यासदेव का भी कोई गारंटी नहीं, शायद वो जानते हैं कि नहीं जानते, कोई गारंटी नहीं है, बल्कि जबकि वही ऑथर है। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि व्यासदेव भी जानते हैं कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, पता नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जरूर जानते हैं और मैं जानता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी का स्टेज लेवल है, और भागवतम का मैसेज भी उस लेवल का है। तो इसलिए उसको हमें सीरियसली ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को परिवर्तित करके दूसरों को भी रियल बेनिफिट देना चाहिए। इसलिए अभी से आप हम दया दिखाएंगे तो सिर्फ शरीर को दया मत दिखाओ, आत्मा को दया दिखाओ। सिर्फ उनको मन को बहलाने वाली बात, किसी को मन को खुश करने के लिए काम मत करो, किसी का आसक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करना। हमें सोचना है कि परमानेंट बेनिफिट किसमें। जब ऐसा समझेंगे तो फिर बहुत आसान रहेगा संन्यास या ब्रह्मचर्य स्वीकार करने में। फिर ये नॉलेज अगर कोई व्यक्ति समझ गया, फिर वो हेजिटेट नहीं करेगा। हाँ, अगर जो ये नहीं समझ पाया तो फिर वो सोचेगा कि परिवार वाले को नाराज नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई सवाल है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु जी, जो भागवतम है उसे लिखा व्यास देव जी ने, तो फिर भी शिव जी यूं कि इसे मुझसे और जो गोस्वामी जी को उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, या फिर वेद व्यास। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। प्रभु जी, जो भागवतम है वो लिखी व्यास देव जी ने। शिव जी यूं क्यों कह रहे हैं कि इसे भागवतम को मैं समझ सकता हूँ और सुध गोस्वामी जी जो सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? व्यासदेव ने लिखा, उनको नॉलेज है, नॉलेज रहना और रियलाइजेशन रहने में अंतर है। ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं भी, ऐसा भी नहीं कह रहे कि व्यासदेव नहीं जानते। वेत्ति न वेत्ति वा, शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मतलब गारंटी नहीं दे रहे। मतलब सिर्फ नॉलेज रहने मात्र से काफी नहीं है, रियलाइजेशन भी होना। एक और जवाब ये भी है कि कोई व्यक्ति, दो और तरीके से इसको जवाब दिया जा सकता है। एक ये भी है कि कोई व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में रहता है तो उनको भेद करना पड़ता है, शरीर मतलब शारीरिक दृष्टि देखना पड़ता है। व्यासदेव भी रियलाइज्ड है लेकिन वो ग्रस्त है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ग्रस्त नहीं है। इसलिए वो भेद नहीं करते स्त्री पुरुष।
लेकिन ये गृहस्थ हैं इसलिए भेद करते हैं कि स्त्री है पुरुष है ऐसा। और तीसरा सबसे मेन आंसर ये है कि वो ऐसा इसलिए है कि भागवतम को रियलाइज करने का भी अलग अलग स्टेजेस है। व्यासदेव ऑफ कोर्स जानते हैं भागवतम, लेकिन जितनी रियलाइजेशन इन दोनों को है, शिव जी और सुखदेव गोस्वामी को, उसके सामने देखा जाए तो नहीं जानते। राइट? भागवतम के ऊपर मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ, है ना, लेकिन कोई बहुत एडवांस डिवोटी, अगर प्योर डिवोटी अगर कोई लेक्चर दे, उनके दृष्टि से तो मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है किसी और के दृष्टि से मैं बहुत जानता हूं, लेकिन किसी और के दृष्टि से मैं कुछ नहीं जानता। मतलब इनकी रियलाइजेशन बहुत हाई है, इसलिए उसके सामने इनका इनके बराबर नहीं, सुखदेव गोस्वामी के जैसे बराबर नहीं। इसलिए व्यासदेव जी भी क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को ही कोट कर रहे हैं। वो लिखवा रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला उसको एज इट इज लिखता है। ठीक है। ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब हमें तो फिर राई के दाने बराबर भी नहीं पता होगा इसमें है क्या भागवतम में। उनके दृष्टि से ऑफ कोर्स, हाँ, अगर हम नीचे जमीन पे खड़े हैं तो झोपड़ी भी बड़ा लगता है ना, और झोपड़ी से तो अगर 3 मंजिले का बिल्डिंग है तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर एरोप्लेन से जा रहे हैं तो सब दोनों ही बराबर दिखते हैं, है कि नहीं? ऐसा तो किसका लेवल से देख रहे हैं वहां से। अच्छा, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भक्त अपनी भक्ति में आगे उन्नति करने के लिए ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो भक्त को पाप के भागी भक्त को पाप के भागी होती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को दुखी करके भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो पाप के भागी बन जाते हैं क्या? क्योंकि माँ बाप को दुख दे रहे हैं। देखिए, पाप का मतलब क्या है? धर्म को तोड़ना। धर्म को तोड़ना पाप है। माता पिता की सेवा करना धर्म है, और उस धर्म को तोड़ने से पाप होता है। लेकिन जब आप परम धर्म को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सारे धर्म उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो पाप लगने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि जब भगवान को आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर पाप कैसे लगे? सुखदेव गोस्वामी को पाप लगा? नहीं। नारद मुनि को पाप लगा? नहीं, क्योंकि वो धर्म नहीं बल्कि धर्म से भी ऊपर परम धर्म को फॉलो कर। तो इसलिए पाप तब लगता है जब आप अपनी आसक्ति के कारण, अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण आप अपने धर्म को फॉलो नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आप महान उद्देश्य से कार्य करते हो, हाँ, वो भागवतम में है ना, क्या है वो? देवर्षि भूताप्त नडाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम ततो मुकुंदम परिहृत्यकम्। जो भगवान की शरण लेता है वो हर प्रकार के ऋण से मुक्त है। देव ऋण, पितृ ऋण, हर प्रकार का ऋण से। तो पितृ ऋण यानी अपने जो माता पिता और जो पितरों हैं, मतलब हमारे पूर्वज, उनके प्रति ऋण ये होता है कि बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करके उनके ऋण चुकता है, क्योंकि उन्होंने हमको शरीर दिया, हम भी अगर किसी को और शरीर देंगे, मतलब पैदा करके देंगे, तो मतलब उनका जो ऋण है वो चुकता है, उसी से चुकता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो भगवान का शरण लेता है वो इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हाँ,
जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो, तो लाल बत्ती आ गई तो रुकना पड़ेगा ना। मतलब रोड पे अगर कार से चल रहे हो, कार से बाइक से चल रहे हो, तो लाल बत्ती देख के क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लाइट से चल रहे हो तो लाल बत्ती देख के नहीं रुकना, क्योंकि वो इस रूल से ऊपर चला गया। तो उसी प्रकार से जो भगवान का शरण लिया है वो इन सारे भौतिक नियमों से परे चला गया। लेकिन ऑफ कोर्स आप भगवान का शरण लिए हो सही में कि नहीं, वो बताने के लिए प्रामाणिक गुरु होते हैं। आप हम खुद अपने आप से नहीं सोच सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत परे चला गया हूँ, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, या मैं मतलब ये हूँ वो हूँ, मैं कर लूंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन सही में हम भगवान के प्रति कितना शरणागत है, कितना हमारे अंदर विश्वास है, वो प्रामाणिक गुरु बताएंगे। और वो अगर बताएंगे नहीं आप संन्यास ले सकते हो या ब्रह्मचारी बन सकते हो, तो फिर उनकी आदेश के अनुसार भक्ति की जाती है, अपने मन से नहीं की जाती। हम एज्यूम नहीं कर लेते कि नहीं। ऑफ कोर्स कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे रिलीज हो तो बात अलग है, लेकिन इसलिए हम सबको प्रामाणिक गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कई बार भावुकता में आके कुछ लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी फिर वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भावुकता में आए, लेकिन प्रॉपर ज्ञान से, रियलाइजेशन से नहीं आए। तो ये भावुकता है या फिर सही में नॉलेज है इनके पास, या सही में उनके अंदर रियलाइजेशन है, ये प्रामाणिक गुरु बताएंगे। तो फिर वो बताएंगे आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो डेफिनेटली कोई पाप नहीं लगता है, इनफैक्ट और पुण्य मिलता है। हाँ, उनको सिर्फ आप ही नहीं, आपकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और आप सिर्फ बच्चे पैदा करोगे तो आपका उद्धार करना, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा करना, शादी करना कोई खराब चीज है, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन सिर्फ उनको शादी करके अपने घर गृहस्थी निभाने मात्र से भगवत धाम जाएंगे कोई गारंटी नहीं। आप भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे, और वो तो पहले से ही फंसे। जो आएंगे वो भी फंसेंगे। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्ति करेंगे तो सिर्फ आपका उद्धार ही नहीं, बल्कि पूरे कई पीढ़ियों का उद्धार होगा। लेकिन हाँ, उसमें हमें सीरियस बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिखावा का भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सही में जब भक्ति सीरियसली करेंगे तो यस, सबका उद्धार होगा। इसलिए स्पेशली जो ज्वाइन किए हैं उनको और सीरियस बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कपड़े बदल दिया, कंठी माला धारण कर दिया, ब्रह्मचारी बन गए, हाँ, तो अब हम मतलब मुक्त हैं प्रकार से, हाँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको फॉलो करना हो, हाँ, जब आप बने हो तो उसी सेवा में आपको लगे रहना चाहिए। जिस पर्पस के लिए हम ज्वाइन किए हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए, उसमें सीरियस बनना चाहिए। तब जाके आप जो कर रहे हो डेफिनेटली परिवार को भी बेनिफिट देगा, और अल्टीमेट बेनिफिट देगा। जो बेनिफिट सिर्फ शादी करने से, पैसे कमाने से जो नहीं मिलता है, उससे भी बहुत कहीं गुना ज्यादा बेनिफिट आप दे सकते हो अगर आप करोगे तो। लेकिन उसको सीरियस बनकर फॉलो करना है। और सिर्फ दिखावा करके ढोंग करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। शरणागति जेन्युइन होना चाहिए, और वो कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। सब जो प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि नहीं, आप उनकी आज्ञा से आप इन सबको छोड़ सकते हो, है ना? ठीक है, ओके। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? प्रश्न का जवाब मिला? प्रबल सिंह, और उसके बाद जो है श्रद्धा। एक्चुअल दया क्या है? रियलिटी में हमें सबकी हेल्प कैसे कर सकते? हाँ, रियल हेल्प यही है कि हमारे जो खोए हुए संबंध है भगवान के साथ, वो स्थापित करना। रियल हेल्प वो है जो शाश्वत फल दे सकती।
जो हेल्प कुछ टेम्पररी बेनिफिट देगा, क्या मतलब? तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् ध्रुमतामुपर्यथ। उसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए जो कहीं नहीं मिलता, जो रेयर है, यानी जो दुर्लभ है और जो भौतिक संसार में कहीं नहीं मिलता, उस चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, भागवतम कहता है। इसलिए बेनिफिट भी हमको वो बेनिफिट देना है जो सबसे हाईएस्ट हो। बाकी छोटे मोटे हेल्प करके, खाना दिया, पैसे दिया, कपड़ा दिया, उससे क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट चीज है वो देना। ओके, उसके बाद श्रद्धा। The devotees who join brahmacharya ashram, they can deal with attachment, but how grahastha would be dealing with attachment? वो तो फैमिली के साथ हमेशा ही रहते हैं ना। गृहस्थ भी अटैचमेंट से दूर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी ही दूर हो सकता है, गृहस्थ भी अटैचमेंट से दूर हो सकता है अगर उस आश्रम को भगवान की सेवा में निभाएं। उस आश्रम को भगवान की सेवा में निभाएं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है, देखो गृहस्थ बन के भी हम भक्ति कर सकते हैं ना। गृहस्थ बनकर भी डिटैच हो सकते हैं, तो गृहस्थ ही बन जाते हैं। ऐसा सोच रहे तो मतलब पहले से अटैच ही है। मतलब वो क्या है, ऐसा ढूंढ रहा है कि मुझे ये भी मिले, वो भी मिले। मुझे भौतिक सुख भी चाहिए, भौतिक आसक्ति को भी सेटिस्फाई करना है और भक्ति भी करना है, दोनों मिल जाएंगे। वो लोग बोलते हैं ना, गृहस्थी में भी भक्ति हो सकती है, घर में भी हो सकती है, वहां जाने की जरूरत। तो मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि ये दो अलग अलग फल है, दोनों फल हम खाएंगे। उधर भक्ति का फल भी खाएंगे, इधर भौतिक फल भी खाएंगे। तो मतलब वो सोचने में भी दिखता है कि अटैचमेंट। हाँ, लेकिन अगर कोई पहले से ग्रस्त है तो उनका मतलब, हाँ, वो निभाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। या फिर किसी की सेवा उसमें ज्यादा सुटेबल है, तो गृहस्थ आश्रम किसी किसी के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है, कुछ कुछ सेवाओं के आधार पर। कभी कभी प्रभुपाद जी कुछ कुछ शिष्यों को ये बदलते थे, आपके लिए गृहस्थ आश्रम बेटर है, उनके नेचर के अनुसार, उनकी सेवा के अनुसार, है ना, वो भी हो सकता है, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई ये सोच के कर रहा है कि नहीं मुझे, हाँ, ये भी एंजॉय करूंगा, वो भी हाँ, तो ये आसक्ति दिखता है उसमें। लेकिन ऑफ कोर्स गृहस्थ आश्रम में अगर कोई है तो यस डेफिनेटली वो भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, वो भी डिटैच हो सकते हैं, ये समझ के कि ये परिवार मेरी परिवार नहीं है, भगवान की परिवार। ये मेरा बेटा नहीं है, ये भगवान का बेटा है और मैं उनका सेवक। ये मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ये भगवान की दासी है। हम इन सबकी सेवा कर रहे हैं, इस भावना से। अगर वो सही में डिटैच होना चाहता तो क्या हो सकता है। जेदिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाई, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, जिस दिन मेरे घर में भजन होता है उस दिन मेरा घर ही गोलोक बन जाता है। ऐसा तो ये है। प्रभु जी, भगवान की शरण में आने पर अचानक परेशानियां क्यों आने लगी? मेरा ये क्वेश्चन, भगवान देखना चाहते हैं कि तुम सही में भक्ति करना चाहते हो। परेशानियां आ रही है। असली वफादारी इसी से समझ में आता है कि कोई व्यक्ति कितना भी समस्या हो, भगवान के अलावा किसी और के पास, दैट मीन्स वो सही में डिवोटी है। ऐसा नहीं सबके साथ ऐसा होता है, कभी कभी भगवान समस्या का समाधान भी देते हैं। 4 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान। जो समस्याओं से पीड़ित है वो भी करता है। ठीक है, किसी किसी के नेचर के अनुसार जो बेस्ट है
वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए गृहस्थ आश्रम बेटर है। प्रभुपाद बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लेडीज जो डिसाइपल्स हैं वो सब गृहस्थ बने, और मैं चाहता हूँ सारे जो जेंट्स डिसाइपल्स हैं वो ब्रह्मचारी बने। लेकिन दोनों कैसे होगा? ठीक है, तो किसी किसी के लिए जो सेवा बेस्ट है, जो भगवान की भक्ति के लिए जो उनके लिए बेस्ट है वो उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ विराम देते हैं। ओके, समझ गए विक्की प्रभु? जी प्रभु जी। समझ गए? हाँ प्रभु जी। क्या समझ गए आप? हाँ प्रभु जी, क्या तो समझ? आपने बताया ना अभी कि जैसे गृहस्थ के लिए मतलब अटैचमेंट रहेगा तो वो भी अपन रह सकते हैं, घर में भी भक्ति कर सकते हैं यदि घर वालों के साथ में भी, और यदि बाहर भी कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसा बोला मैंने? मैंने ऐसा कहा क्या? मैंने ये कहा कि जिसके लिए जो बेस्ट है भक्ति के लिए, वो जो प्रामाणिक गुरु और वैष्णव जो है वो आपको गाइड करेंगे। ये सोच के ग्रस्त नहीं बनना चाहिए ताकि ग्रस्त में क्या ना मुझे मटेरियल एंजॉयमेंट में भी मिलेगा और भक्ति भी करूंगा, दोनों करूंगा, ऐसे सोच के नहीं बनना चाहिए, ये बोला था। लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, वो गुरु से पूछना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बेस्ट भक्ति के लिए कौन सा ये है कि वो इस तरह से। ये ऐसा नहीं कि एक्चुअली रियली अगर कोई भक्ति में सीरियस है तो वो कैसे दिखता है, वो उनकी विलिंगनेस से दिखता है कि मैं भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए जो तैयार रहता है ना, भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए जो तैयार रहता है, वो असल में रियली भक्ति करना चाहता है। और कोई अगर ऐसे सोच रहा है कि मुझे भौतिक आसक्ति को भी सेटिस्फाई करना है और भक्ति को भी भक्ति भी करना है, तो इसका मतलब है वो सिंसियर नहीं है ना। तो हमको भक्ति में रियली सीरियसनेस उसी से दिखता है। ठीक है, समझ गए विक्की प्रभु? जी प्रभु जी। भौतिक आसक्ति छोड़ना चाहते हो तो क्या भी नहीं? हाँ प्रभु जी, छोड़ना तो चाहता हूँ, यदि इसमें हाईएस्ट टेस्ट और मतलब वो मिल रहा है तो फिर वो तो बहुत अच्छा है ना प्रभु जी, ये तो परमानेंट है और वो तो टेम्परेरी है फिर। वेरी गुड। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद। अच्छा, एक क्वेश्चन है। मुझे ये बोलना था, जैसे आप बताया बिजनेस बेनिफिट देना चाहिए, जैसे पेरेंट्स हमारे, मेरे केस में मेरी मदर तो मतलब मैं उनको सुनाता सुन लेती, लेकिन मेरे फादर में जैसे एक शब्द बोल दूं तो फिर घर का माहौल अशांत हो जाता है। हालांकि वो मेरे को सपोर्ट करते, मतलब उससे कभी रोकते नहीं है, लेकिन उनके अपने ही अलग कंसेप्ट नहीं कौन। तो उस स्थिति में हम रियल बेनिफिट देना चाह रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला लेने थी तो हमारे कोई कलीग हम काम कर रहे थे, वो हमारे साथ अच्छा बात करते हैं, हेल्प करते हैं, सब चीज करते हैं। मतलब अब जैसे एक किसी जगह जाए, कॉलेज में पढ़ रहे तो क्लास के नोट्स को सब साथ में पढ़ रहे, लेकिन हम उनको बेनिफिट देना चाह रहे हैं, वो लेना ही नहीं चाह रहे बेनिफिट। हमने प्रयास किया तो 3-4 बार, फिर क्या करें? मैं समझ गया। अगर आप बेनिफिट देना चाह रहे हो तो लेकिन लेना नहीं चाह रहे, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप खुद वो लेंगे नहीं तो दूसरों को दे भी नहीं सकते। तो हम जब सीरियसली लेंगे तो तब हम दूसरों को दे पाएंगे। पहली बात तो ये है।
एक्चुअली एक ही बात, मेन बात यही है, जब हम खुद सीरियस बनेंगे तो फिर बताने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। बताना उन्हीं को है जो सुनना चाहता है। हाँ, और अगर आप भक्ति में सीरियस बनोगे, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट उनको जाएगा, वो सुने या ना सुने, पेरेंट्स को स्पेशली। जैसे प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे, उनके पिता ने उनके बात तो सुना नहीं, लेकिन इनकी भक्ति के कारण उनको होता है ऐसा। तो अगर वो सुने तो ठीक है, नहीं भी सुने तो कोई चिंता नहीं। अगर आप शुद्ध भक्त बनोगे तो भगवान डेफिनेटली उनको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से डिलीवर करेंगे। इनफैक्ट भक्त जिनके प्रति थोड़ा सा अफेक्शन दिखाना चाहता है, थोड़ा उनको हेल्प करना चाहता है, तो भगवान सबसे पहले उनके ऊपर ऑटोमेटिकली दया, भगवान की मर्जी उनके ऊपर जाती है। हाँ, वही तो भक्ति का मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स है। हाँ, अगर भक्त किसी से नाराज है तो भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर भक्त किसी के ऊपर खुश है तो भगवान भी अगर नाराज है तो भगवान को उद्धार, क्योंकि किसी के ऊपर भक्ति, भगवान यही देखते हैं कि मेरे भक्त क्या चाहता है और उनको फुलफिल करना चाहता है। तो भक्त ऑटोमेटिक ऑब्वियसली चाहता है कि जो भी उनके कांटेक्ट में हो सब भक्त बने, तो भगवान को डेफिनेटली सबसे पहले हेल्प करे। ठीक है, भक्ति मतलब सीरियसली करना इतना इम्पोर्टेंट जो सेल्फ, तो वही क्वेश्चन है कि सीरियसली भक्ति कैसे करें, मतलब कैसे पता चलेगा हमें कि हम भक्ति सीरियस कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात ये भी है आपका क्वेश्चन के लिए कि बेनिफिट देना, हम क्यों सोचते हैं कि इन्हीं को बेनिफिट देना है। जहाँ ऐसा आज के श्लोक में क्या बोला, सर्वभूत हृदयम, वो सभी जीवों के ऊपर है। जो इंटरेस्टेड है उनको देंगे, जो लेना चाहता है उनको देते हैं। दुकानदार ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा माल लो, लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी बोलता है। नहीं लेना है थोड़ा रास्ते से हट जाओ, अगला कस्टमर, आप लेना है, आपको लेना है, आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं, आप लेना है, आपको नहीं लेना, जिसको भी लेना उसके पास जाएगा। ये नहीं सोचेगा ये मेरा 20 साल का मित्र है, मैं अपना माल इसी को देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं सोचेगा। जो इंटरेस्टेड है उनको दो, और बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड। हम क्यों एक को पकड़ के उसी को देना है सब, जो 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 भी इंटरेस्टेड उसको देंगे। और अगर आप सिंसियरली फॉलो करेंगे तो भगवान भी उनके दिल में है, भगवान के दिल से आवाज देंगे, सुनो इनसे। ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब भी आपका भक्ति का लेवल बहुत अच्छा चलता है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आके आपसे सुनते हैं और प्रभावित होते हैं। और जब आप ठीक से भक्ति नहीं करते हो ना, आप कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, वो व्यक्ति आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के दिल से प्रेरणा नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान खुद नहीं खुश नहीं है। जब भगवान खुश होते हैं तो सबके दिल से में भगवान बैठे हुए आवाज देते हैं, अरे देखो मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे सुनो आप जाके। तो ऑटोमेटिकली हाँ, लोग आपकी प्रीचिंग से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति होगा, लेकिन जो होंगे वो तो होंगे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, मतलब कैसे पता चलेगा? सीरियसली भक्ति करना इतना इम्पोर्टेंट, तो कैसे पता चलेगा, मतलब भक्ति मतलब क्या रहता है? सीरियसली कर रहे हैं कैसा, इट शोस कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये ऐसा है कि मेरा भूख मिटा है कि नहीं कैसे पता चलेगा, मुझे शक्ति आ रही कि नहीं कैसे पता चलेगा पता चलेगा बिकॉज यू एक्सपीरियंस इट। खाने से ऑटोमेटिकली भूख मिट जाता है, शक्ति
प्रभु जी, यू आर बॉस। प्रभु जी, वो पॉज हो गया लाइव। ओके, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा कि अगर हम विकी प्रो होस्ट बन गए तो पता ऐसे ही चलेगा सीरियस है कि नहीं। मेनली हमें सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए इनिशियली। ऑफ कोर्स आगे तो हम खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन इनिशियली सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, भक्ति ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो बताएंगे। बाकी डिवोटीज भी बताएंगे, है ना। इसलिए तो है डिवोटीज, बताने के लिए कि आपका प्रोग्रेस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। सारे डिवोटीज तो मतलब गुरु से पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं, पर आप सारे डिवोटीज से पूछें तो वो हम्बलनेस के कारण बोलते हैं हाँ सही कर रहा है, मैं क्या बताऊं। तो डिवोटीज मतलब उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो डिवोटीज गाइड करते हैं। तो प्रभु जिन्होंने गुरु ने एक्सेप्ट किया, गुरु ने, किसी गुरु ने आपको तो एक्सेप्ट किया ना, कोई तो आपको सिखा रहे हैं ना। गुरु मतलब ये नहीं ओनली दीक्षा गुरु, हम जो भी आज तक सीखे किसी न किसी से तो सीखे है ना। तो जो सिखाया वो कौन है फिर? तो गुरु नहीं होते तो अभी तक हम यहाँ तक कैसे आए? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरे हरे।